Okay, good morning. So again, we are here to have a new topic as a darshan or philosophy. So darshan or philosophy, which is considered as a base for all the knowledge what we receive from our Indian tradition, Indian culture, and that knowledge that has been established or conveyed or being postulated by different philosophers because our country is very rich of giving knowledge or spreading knowledge to the other countries. So in that sequence, darshana is considered as the base, not only for understanding Ayurveda, but also understanding so many other sciences also. So we'll see what exactly is darshana, its derivation, its etymological derivation, different types of darshanas, their profounder, and their different basic principles. So we'll see. Darshana initially we can say that are classified into two: the Indian philosophy and the Western philosophy, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन. तो हम यहाँ पर भारतीय दर्शन के बारे में जानने के लिए अधिक उत्सुक है, क्योंकि भारतीय दर्शन इतना प्रगाढ़, इतना विस्तृत है कि उसके सामने बाकी और दर्शन जो है, वेस्टर्न फिलोसॉफी जो डेवलप हुई, वो तो बहुत बाद में हुई. जबकि भारतीय दर्शन जो है, एज इट इज कंसिडर्ड एज एंशियंट एज यू कैन से इट ऑलमोस्ट 3000 बीसी, 3000, 3000 वर्ष पूर्व, बीसी, ईसा पूर्व, तब उसकी शुरुआत मानी जाती है. जबकि वेस्टर्न फिलोसॉफी जो है वो 6th सेंचुरी के बाद में डेवलप होना शुरू हुई. तो 6th सेंचुरी जो यह काल था, वो भगवान गौतम बुद्ध और भगवान वर्धमान महावीर इनका काल माना जाता है. लेकिन इनके पहले भी यदि हम देखते हैं, वेद जो 4 प्रकार के वेद बताए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वहां से हमारे भारतीय दर्शन की परंपरा शुरू होती है. और इन वेदों की जो परंपरा है वह तकरीबन 5000 साल पहले की भी मानी जाती है. तो इतना प्राचीन हमारा भारतीय दर्शन, हमारा भारतीय शास्त्र है. और जबकि उसके बाद जो इन वेदों के उपवेद, फिर काव्य, पुराण, साहित्य और उपनिषद और विभिन्न जो जो ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, तो उनका निर्माण इन वेदों से ही प्रारंभ हुआ. सो वी कैन से दैट द इंडियन फिलोसॉफी is very the oldest one, and it is the first primary source of knowledge for all the tradition, all the culture, or all the providing this knowledge to all the countries. So later on, other Western philosophy received this knowledge, gained this knowledge, because we find the history of so many foreigners, travelers. They were visiting in India to gain the knowledge. Like we know that the different universities prevailing in those centuries, almost 1000 or 1500 BC, the more so many universities were traveling in India, like the Takshashila University, Vikramshila University, Nalanda University. We find these sources from Archaeological Survey of India, and found so many the milestones, so many different ancient stones, or you can say the Shila Lake, and different manuscripts and different sources. We can find the knowledge of prevalence of these universities. Like we say that the ancient Indian civilization of Mohenjo-daro and other culture, where they were the highly developed cultures in those times, where the modern world or Western world was just starting its development, its origin. So we have that much rich tradition, rich culture, and rich background of our ancient Indian knowledge in terms of different philosophies, and darshana is one of the part of these philosophies. तो दर्शन दर्शन की व्याख्या हम देखेंगे. सबसे पहले निरुक्ति.
दृश्यते यथार्थ तत्वम अनेनिति दर्शनम। तो जिसके द्वारा यथार्थ तत्व देखे जाते हैं या जाने जाते हैं उसे दर्शन कहा जाता है। तो दर्शन का मुख्य उद्देश्य यथार्थ तत्वों को जानना, उनका ज्ञान प्राप्त करना। और इन यथार्थ तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने से ही हम हमारे जीवन के उद्देश्य में, या जो दर्शन शास्त्रों का उद्देश्य रहा है मोक्ष प्राप्ति, वह प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। सेकंड डेफिनेशन है तत्व ज्ञान साधन शास्त्र दर्शन। तत्व का ज्ञान उपलब्ध कराने वाला साधन ही दर्शन शास्त्र है। तो तत्व का ज्ञान प्राप्त करना, प्रत्येक दर्शन शास्त्रों के अपने अपने तत्व रहे हैं, अपने अपने फिलोसॉफी, अपने अपने प्रिंसिपल्स रहे हैं। तो उन तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन शास्त्र कहलाता है, दर्शन शास्त्र का उद्देश्य रहा है। दर्शन की संख्या, विल सी द नंबर ऑफ दर्शनास। माध्वाचार्य ने सर्वदर्शन संग्रह में 16 दर्शन बताए हैं। इसमें से 9 दर्शन प्रमुख हैं। उन्होंने 16 दर्शनों का वर्णन किया है। तो यह 16 दर्शन कौन कौन से हैं? विल सी देयर नेम्स। चारवाक, बौद्ध, जैन, सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, रामानुज, पूर्व प्रज्ञ, नाकुलिश, पाशुपत्य, शैव, प्रत्यभिज्ञा, रसेश्वर, पाणिनीय। तो ये 16 दर्शन बताए हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ स्टडी दोज हु वांट टू बिकम a philosopher or who want to study specialty in darshan shastra or want to do some more studies like PhD or higher studies. For them these 16 darshanas are there. But being the medical student, out of these 16 darshanas we are having study of 9 darshanas which have direct correlation with the Ayurveda medical science. So we'll see what are these 9 darshanas, and they are classified again into 2 categories, आस्तिक दर्शन and नास्तिक दर्शन। तो दर्शन विभाजन, सबसे पहले देखेंगे आस्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन यह 6 हैं। आस्तिक दर्शन किसे कहेंगे? अस्तिक परलोक इत्येवं मति यस्य स आस्तिकः। तो जो परलोक में आस्था, श्रद्धा और विश्वास रखते हैं उसे आस्तिक दर्शन कहते हैं। ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं, ईश्वर को मानते हैं, कर्म को मानते हैं, कर्म फल को मानते हैं, पुनर्जन्म मानते हैं, मोक्ष मानते हैं, उन्हें आस्तिक दर्शन कहेंगे। तो ये आस्तिक दर्शन 6 है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो इन 6 आस्तिक दर्शनों को एकत्रित रूप में षड दर्शन भी कहते हैं। उसके बाद देखेंगे नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन ये 3 है। नास्तिक दर्शन, नास्तिक परलोक इत्येवं मति यस्य स नास्तिकः। जो दर्शन परलोक को नहीं मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, वेदों को नहीं मानते हैं, यदि ब्रॉडली देखेंगे तो यह नास्तिक दर्शन की व्याख्या हो गई। इसमें से नास्तिक दर्शन 3 है। तो ये 3 नास्तिक दर्शन, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन। फिर भी इसमें और माइन्यूटली हम क्लासिफाई करने जाएंगे तो चार्वाक दर्शन जो है यह पूर्णतः नास्तिक दर्शन है, जबकि बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, इन्होंने सीधे सीधे ईश्वर की मान्यता को स्वीकार नहीं किया है। सृष्टि उत्पत्ति में ईश्वर की कारण को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन फिर भी यह वेदों को मानते हैं या वेद ग्रंथों को में आस्था दर्शाते हैं। और इन्होंने उस समय के जो जो राइचुअल्स थे, जो जो नीति नियम थे, जो जो गाइडलाइंस थी, उनको एकत्रित करके उनके अपने अपने ग्रंथ बनाए। उन ग्रंथों में आस्था और श्रद्धा रखते हुए उसको मानते हैं। भले ही वो ईश्वर को, ये सृष्टि की रचना ईश्वर ने की ऐसा वो नहीं मानते हैं। ईश्वर है भी या नहीं भी है, इसके बारे में भी उनका कुछ सीधा डायरेक्ट उनका डायरेक्ट मैसेज या डायरेक्ट उनका ओपिनियन नहीं है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट दे फॉलो द थिंग्स दैट आर बीइंग फॉलोड बाय आस्तिक दर्शन in some or another way. Hence, Bauddha darshan and Jain darshan cannot be considered as Nastik darshan only, and so they can be considered being Astika and Nastika. तो बौद्ध और जैन दर्शकों में आस्तिक और नास्तिक दर्शन ऐसा मानना पड़ेगा। वो न पूर्णतः नास्तिक है, न पूर्णतः आस्तिक है। तो इस तरह से इन दर्शनों का क्लासिफिकेशन किया गया है। We'll see आस्तिक और नास्तिक दर्शन में क्या भेद है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आस्तिक एंड नास्तिक दर्शन? तो आस्तिक दर्शन
परलोक में विश्वास रखने वाले नास्तिक दर्शन, परलोक में विश्वास न रखने वाले आस्तिक दर्शन, वेदों को प्रमाण मानने वाले नास्तिक दर्शन, वेदों को प्रमाण न मानने वाले आस्तिक दर्शन, ईश्वर पर विश्वास व श्रद्धा रखने वाले नास्तिक दर्शन, ईश्वर पर विश्वास व श्रद्धा न रखने वाले। अब यदि हम बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन की बात करें तो पहले दो पॉइंट्स, दे बिलीव इन फर्स्ट टू पॉइंट्स, दे बिलीव इन परलोक, नो डाउट, दे बिलीव इन वेदास, बट दे डोंट बिलीव ऑन ईश्वर। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट आस्तिक दर्शन में कर्मफल पर विश्वास व श्रद्धा रखने वाले, नास्तिक दर्शन कर्मफल पर विश्वास व श्रद्धा न रखने वाले। आस्तिक दर्शन आत्मा को देह अतिरिक्त स्वीकार करने वाले, नास्तिक दर्शन आत्मा को देह अतिरिक्त स्वीकार न करने वाले। So these are the points that differentiate between Astic Darshan and Nastic Darshan. So out of this, all the points are as it is followed by Charvak Darshan. Hence, Charvak Darshan is considered as the Nastic Darshan only. Otherwise, remaining 6 Astic Darshan we know, and both the Jain Darshan are Astic as well as Nastic. So we'll see in next table दर्शन, उसके रचयिता और उनके पर्यायी नाम। सबसे पहले देखेंगे आस्तिक दर्शन। तो उसमें सांख्य दर्शन रचयिता कपिल मुनि, द प्रोपॉन्टर इज कपिल मुनि एंड इट्स सिनोनिम इज निरीश्वर सांख्य। बिकॉज अगेन सांख्य दर्शन व्हाइल इट इज कंसिडर्ड आस्तिक दर्शन, बट सृष्टि उत्पत्ति के लिए फिर से उन्होंने ईश्वर की प्रेरणा को नहीं माना है, इसलिए वह निरीश्वर सांख्य दर्शन ऐसा उसको कहा गया है। जैसा कि आचार्य सुश्रुत ने भी जो सृष्टि उत्पत्ति के जो षट कारणवाद बताए, स्वभावम ईश्वरम कालम यदृक्षा नियतिम तथा परिणामम च मन्यन्ते प्रकृतिम प्रकृतदर्शिना, तो वो कुछ न कुछ इस सांख्य दर्शन से प्रेरित है। तो उसमें ईश्वर का सीधा उसकी ईश्वर की प्रेरणा को न मानकर सृष्टि उत्पत्ति जो है वह स्वभावतः हुई है, ऐसा उन्होंने माना है। तो इसलिए से निरीश्वर सांख्य दर्शन कहे। उसके बाद में योग दर्शन, उसके रचयिता है पतंजलि मुनि, पर्यायी नाम पातंजल या फिर शेश्वर सांख्य दर्शन। पतंजलि मुनि यह सृष्टि उत्पत्ति में ईश्वर का महत्व या ईश्वर को प्रधान कारण मानते हुए सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन किया है। उनके जो इसलिए उनके 26 तत्व है, 25 तत्व एज इट इज लाइक सांख्य दर्शन और 26वां तत्व ईश्वर, इसलिए योग दर्शन का पर्यायी नाम है शेश्वर सांख्य। उसके बाद है न्याय दर्शन, रचयिता आचार्य गौतम और इनका पर्यायी नाम है अक्षपाद, आन्वीक्षिकी विद्या, तर्क विद्या। अब यह न्याय दर्शन जो है यह किसी भी सिद्धांत को अनेक परीक्षणों से उसका परीक्षण करके बाद में उस सिद्धांत की उस तत्व की वो स्थापना करते हैं, इसलिए इनका पर्यायी नाम है अक्षपाद, आन्वीक्षिकी विद्या और तर्क विद्या। उसके बाद नेक्स्ट है वैशेषिक दर्शन, रचयिता कणाद मुनि और इनका पर्यायी नाम है औलुक्य दर्शन। तो इनके इस तरह के पर्यायी नाम ऐसे क्यों पढ़े, जब हम वो दर्शन विस्तार से पढ़ेंगे तब इसके बारे में भी हम जानेंगे। अगला है पूर्व मीमांसा, रचयिता है आचार्य जैमिनी, पर्यायी नाम है मीमांसा दर्शन। नेक्स्ट लास्ट इन द आस्तिक दर्शन उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन, रचयिता व्यास मुनि, इसे ही ब्रह्म सूत्र या भगवत गीता कहते हैं, क्योंकि इनके जो सूत्र है वह ब्रह्म सूत्र कहलाते हैं और इन सूत्रों का वर्णन भगवत गीता में भी पाया जाता है। इनका पर्यायी नाम वेदांत या वेदांत शांकर। तो इस तरह से यह आस्तिक दर्शन, उनके रचयिता और उनके पर्यायी नाम। नास्तिक दर्शन नंबर 1 चार्वाक दर्शन, इसके रचयिता देवगुरु बृहस्पति, इसलिए बृहस्पत्य, पर्यायी नाम बृहस्पत्य दर्शन या फिर लोकायत दर्शन। नंबर 2 जैन दर्शन, रचयिता वर्धमान महावीर, पर्यायी नाम नैकांत दर्शन। नंबर 3 बौद्ध दर्शन,
रचयिता गौतम बुद्ध और पढ़ाई नाम सौगत दर्शन।